Hey guys! So today is our day 3 in Udaipur and आज हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। एक्चुअली कल का ही प्लान था बट क्योंकि सज्जनगढ़ फोर्ट में बहुत भीड़ थी तो हम लोगों ने कल स्किप किया है एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग देयर टुडे। वी हैव फाइनली गॉट आवर टिकट्स एंड वी आर ऑफ टू सज्जनगढ़। व्हाट इज द प्लान आफ्टर दैट? After that I want to go and explore some shopping, Rajasthani attire, फिर थोड़े jewelry, maybe I'll just buy that or some handicrafts as well. उसके बाद maybe we'll go and explore some cuisine, Rajasthani cuisine. Yes, let's do that. Sajjangarh Fort is on top of Bansdhara Hills. So you can hike to the top of the mountain or you can choose to drive till the foot of the fort. Hey guys, so we have reached Sajjangarh Fort and as you have seen, roads काफ़ी ज़्यादा steep हैं but still like it's manageable. This mountain range is Aravalli. This I didn't know. हम लोगों ने geography books में पढ़ा था Aravalli range, but I didn't know that हम लोग Aravalli range के अंदर ही हैं अभी. ये वर्ल्ड का largest range of mountains है और ये जो fort है जहाँ अभी हम चढ़ने जा रहे हैं, this fort was built for Maharaja Sajjan Singh, but after he died, his successor Fateh Singh, he was using this as a monsoon palace because यहाँ से view बहुत अच्छा है. वो और उसके प्रजा वो लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ से मौसम का व्यू देखते थे. So we are now going to just climb the fort and see how is the view from there. It's little foggy. I wish थोड़ा मौसम clear रहता तो हमें भी थोड़ा view दिख जाता. But come with us, see how it looks. Sajjangarh Fort was originally planned to be a 9-storied building for studying astronomy and monsoon patterns. However, due to the early death of Maharaja Sajjan Singh, his son Fateh Singh turned it into a recreational center and it was majorly used as a hunting lounge for the royal family. So we are finally done with our tour of the Sajjangarh Fort. It is such a beautiful place और बहुत मज़ा आया हम लोगों को घूमने में, देखने में. The fort offers amazing viewpoints of the city and the mountains, Aravalli mountains around the area. और बहुत अच्छा लगा देख के और टाइम स्पेंड करके. इट इज़ मिड डे और हम लोग यहाँ पर हैं, बट दिस प्लेस इज स्टिल सो नाइस एंड ब्यूटिफुल to look around. Usually people kind of suggest that you should come down at sunsets here. थोड़ा सा और clear होता है. The only thing that I think I want to kind of pass on is that as travelers and people who want to see beautiful places around, we should be a little more responsible on how we are traveling, guys. You can't spit around on the walls of a monument which is 200, 300 years old. You can't litter around bottles, plastic bottles in beautiful lotus ponds. थोड़ा सा हम लोग को और responsible होना चाहिए travel के time पे and take care of these places. So that's about it. Our next stop is going to be a lunch place somewhere maybe inside the city. We are trying to figure out how we will go there. और शायद ऑटो करना पड़ेगा बिकॉज गाड़ी ले जाना तो मुझे ऐसा लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है शहर के बीच में एंड ओल्ड उदयपुर में ले जाना. इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एज ऑफ नाउ. शायद कंस्ट्रक्शन ज़रा चल रहा है बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. और मिलते हैं थोड़ी देर में कहीं अच्छी जगह लंच करते हुए आपके साथ. एक ऑथेंटिक राजस्थानी थाली की खोज में हम पहुंच गए नटराज होटल जो है बापू बाजार मेन रोड पे. ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड नटराज होटल. यहाँ पे हमें थाली ट्राई करनी थी. मुझे सीरियसली राजस्थानी फूड ट्राई करना था. फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए. थाली लुक्स रियली अमेजिंग. आई एम गोना टेस्ट इट नाउ. यहाँ इजी है पहुँचना. यहाँ हम आराम से कार से आ गए. पार्किंग में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई. बट ये गली थोड़ी सी पतली है बट स्टिल इट्स वर्थ इट. लेट्स ट्राई. ओके, थाली इज़ टेस्टी. आई हैव गॉट सम dal, this is some sprout sabji, this is lauki ki sabji, this is mixed beans. I think it's beans, aloo, then some onion, chutney, achar, dahi, and they have given some
gulab jamun as well. Taste अच्छा है, taste अच्छा है. I'm liking this sabji a lot. This is some kind of beans, I think. I'll ask them, but this is tasty. This lauki sabji is tasty. Everything is nice. It's good. I'm enjoying it. And I think the best thing is that it's very inexpensive. It's I think 200 per thali. So it's worth the money. After an amazing lunch, we had a chance to meet the owners of Nataraj Hotel. मेरा नाम देवेंद्र कुमार श्रीवाली है और हमारे होटल का नाम है नटराज लॉज। ये न्यू बापू बाजार अशोका सिनेमा के पीछे इसकी बिल्डिंग है और इस नटराज होटल के कारण इस गली का नाम नटराज गली पड़ गया। किसी को भी पूछो आप तो फेमस नटराज गली के। इसकी स्थापना हमारे पिताजी ने की थी। हमारे फादर का मूल प्रिंसिपल था, पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या, और उनका एक पूरा बैलेंस डाइट जो हमारी थाली के अंदर है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, फिर प्रोटीन्स हैं, फिर कर्ड वगैरह हैं सर। इसमें क्या लेक्टोजन वगैरह हैं, लैक्टोबैसिलस जो पेट के लिए ठीक रहता है। तो पिताजी का यही असूल था कि कस्टमर की सेवा करो, अपने आप कस्टमर आएंगे सर। तो गाइज़, हम लोगों ने नटराज में खाना खा लिया है और उनके ओनर से भी बातचीत करी है अभी 2 मिनट पहले। बहुत अच्छा लगा। इट्स नाउ बट 50 years सिंस द टाइम दे हैव बीन रनिंग दिस प्लेस, और बहुत ही खूबसूरत और अच्छी खाने की जगह है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव। सिर्फ 200 रुपीज़ में थाली है, और थाली के तो क्या स्वाद है। इट इज़ रियल, मतलब अगर आपको ऑथेंटिक फूड खाना है राजस्थान का ना, सो दिस इज़ द प्लेस दैट यू शुड बी इन। लंच के बाद हमें करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो हम चल पड़े उदयपुर के लोकल मार्केट की तरफ, जिसे हाथीपोल बाजार कहते हैं। तो हम आ गए हैं अब हाथीपोल मार्केट, और एज़ यूजुअल रूना शॉपिंग कर रही है अंदर, लाइक ऑलवेज। इस रास्ते को हाथीपोल इसलिए बोलते थे क्योंकि राजाओं की सवारी जाती थी हाथियों से। दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज दिस रोड यूज्ड टू बी कॉल्ड एज हाथीपोल। और आज यहाँ पर उदयपुर का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ड्रेस मटेरियल्स एंड अदर स्टफ। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं उदयपुर में, तो दिस इज़ द प्लेस टू बी गाइस। दो 3 घंटा शॉपिंग करने के बाद हमें चाहिए थी थोड़ी सी रिफ्यूलिंग, एंड लाइक मोस्ट अदर इंडियंस आवर वे टू रिफ्यूल इज टू हैव अ गुड टी। तो एक अमेजिंग चाय की खोज में हम पहुंच गए पंडित जी के लेमन टी स्टॉल पे। आई एम हैविंग पंडित जी की लेमन टी। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड गाइस आफ्टर द लॉन्ग हेक्टिक डे। मुझे यही चाय चाहिए थी। दिस इज़ सो रिफ्रेशिंग। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई व्हेन यू आर इन उदयपुर। तो हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन जगह जिसको बोला जाता है पंडित जी की लेमन टी, और आई बीइंग अ लेमन टी फैन कुड नॉट हैव मिस दिस प्लेस। और आज खुद पंडित जी हमारे साथ में हैं, जिनकी ये चाय की दुकान है और बहुत ही बढ़िया दुकान है। पंडित जी, कैसे आप मेंटेन करते हैं इतनी बेहतरीन चाय सालों साल? बस मेंटेन तो क्या है, एक हल्दी घाटी से है तो एक जुनून है कि काम करना है तो बढ़िया करना है। ऐसा नहीं कि फेमस हो गए और ये अपना सारा सिस्टमेटिक मॉडिफाई कर दिया, कुछ भी नहीं है सर। 14 ईयर ओनली 10 रुपीज़ एंड क्वालिटी मेंटेन। क्या बात है। हर चीज़ को बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है। खाली मैं ये ज़रूर ध्यान रखता हूँ किस कस्टमर को पसंद आई और किसको नहीं आई। अच्छा, किसने पैसे दिए नहीं दिए, पैसे के पीछे नहीं, अच्छा, क्वालिटी। क्या बात है दोस्तों। तो उदयपुर आएँ, और अगर आपने पंडित जी की चाय नहीं पी तो आप रियली कुछ मिस कर रहे हैं। और सहेलियों की बाड़ी के पास में दुकान है पंडित जी की, प्लीज़ आइए और बस लेमन टी ज़रूर ट्राई करिए। अगर कोई कंफ्यूज करता है तो कंफ्यूज नहीं होने का। गूगल पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा फेस के साथ लग रहा है, सारी चीज़ें लग रही है। पंडित जी की लेमन टी करके आप डालना, सारी चीज़ आ जाएगी। अगर कंफ्यूज करता है तो आप कॉल करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच पंडित जी, थैंक यू सो मच। That brought us to the end of our 3-day trip to Udaipur. We thoroughly enjoyed the place and we hope
you liked our video too. Do not forget to subscribe to our channel if you have not done already. Please leave a comment about how you liked the Udaipur series. This is Gaurav and Runa signing off from Wanderlusting Couple. Keep traveling, keep exploring. Until we meet again.